پھر بادشاہ وقت نمرود سے بھی مناظرہ کیا اور اس پر بھی واضح کر دیا ربوبیت اور الوہیت صرف معبود واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے باوجود قوم قبول حق سے منحرف رہی، قوم نے مانا ہی نہیں، حتیٰ کہ بادشاہ نے انہیں آگ میں جلانے کا حکم صادر کر دیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی، اور دشمن اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اور اس واقعے کے بعد اب دیکھیے کہ ان کی قوم جو تھی وہ کس قدر سخت اور جاہل قوم تھی، کہ جو پورا آگ کا واقعہ ہوا تھا ایک بہت بڑا معجزہ ہوا تھا، ابھی ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، تو اس اتنے بڑے معجزے کے بعد بھی پوری قوم میں سے صرف ایک شخص ایمان لایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور وہ شخص کون تھے؟ وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے، اسی لیے تو حضرت لوط علیہ السلام ساتھ تھے۔ تو یہ جو آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا گیا تھا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور سلامتی والی ہو گئی تھی، تو اس وقت صرف حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، باقی پورا جتنا بڑا علاقہ تھا اس میں سے ایک شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اور آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہاران کی طرف پھر ہجرت کیسے ہوئی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے بچ نکلے تو عراق سے ہجرت کا ارادہ کیا، چنانچہ وہ اپنے والد آزر اور قوم کو چھوڑ کر جنوبی عراق میں دریائے فرات کے دائیں کنارے کی بستی، ابھی میں نے آپ کو دریائے فرات بھی دکھایا ہے، اور کلدانیہ چلے گئے، جسے تاریخ میں صرف اور یا اور کہا جاتا ہے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا، پھر اپنی اہلیہ سارہ رضی اللہ عنہا اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ہمراہ شام کے شہر حران یا ہاران روانہ ہو گئے، جو جنوبی ترکی میں واقع ہے، اور حران اور سے تقریباً 1000 کلومیٹر مغرب میں الجزیرہ میں واقع ہے۔ میں دوبارہ آپ کو نقشے پر لے کر جاتی ہوں اور یہاں پر آپ کو جو ہے یہ ساری جگہ دکھاتی ہوں، یہ اور ہے، کچھ عرصہ یہاں رہے اور پھر دوبارہ یہ دیکھیے 1000 کلومیٹر جو آپ کو بتایا گیا، یہ ہے حران، ہاران یا حران دونوں اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے حران۔ پھر یہاں چلے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ نقشہ جو ہے یہ آپ کے بڑے کام آئے گا کیونکہ آپ کو پھر سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو یہاں سے پھر دیکھیے، اور اس زمانے میں کوئی جہاز نہیں تھا، ٹرین نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، یہ سارے سفر یا پیدل ہوتے تھے یا گھوڑا یا اونٹ یا اس طرح کے سفر جو تھے وہ کیے جاتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی مشکل سے کیا، لیکن یہاں تک جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، اور یہ ہے حران شام کے قریب بالکل، اور یہ دریائے فرات آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں، یہ اور سے آگے بابل کے قریب سے یہ دریائے فرات شروع ہوتا ہے اور یہ پورا اس طرح سے حران کا علاقہ، اور یہ پیچھے جو ہے یہاں تک جو ہے وہ دریائے فرات جاتا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے کیا کیا، جو تھا وہ سفر کیا، اور پھر جنوبی ترکی میں جو ہے، یہ آج کل کدھر ہے، یہ جنوبی ترکی میں یہ حران جو ہے واقع ہے، حران اور سے تقریباً 1000 کلومیٹر شمال مغرب میں الجزیرہ میں واقع ہے۔ ابن عیینہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حران جاتے ہوئے قادسیہ سے گزرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو آپ کو قادسیہ کے بارے میں پڑھاؤں گی، بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے قادسیہ کا بھی۔ اور اسے شاداب پایا، یہاں انہیں ایک بڑیا ملی جس نے آپ کا سر دھویا، اس پر آپ نے اسے دعا دی تو وہ اس زمین میں پاکیزہ ٹھہری، اسی وجہ سے اس قصبے کا نام قادسیہ پڑ گیا۔ یہ معجم البلدان جلد نمبر 4 میں یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پھر وہاں پر جب قادسیہ کا آئے گا تو وہاں آپ کو ان ڈیٹیل پڑھائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب بابل سے کوسا جا کر اس ساری جگہ کی زیارت کی تھی تو وہاں پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھی بھیجا تھا، اور پھر یہ آیت بھی پڑھی تھی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہیں پر تھے یا یہاں سے گزرے تھے، اور ہم زمانے کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب تاریخ کی عمر، تاریخ ابھی آپ کو بتایا آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ، تو جب تاریخ کی عمر 75 سال ہوئی تو اس کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ناہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران کے ہاں لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے
کہ जो हारान था वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भाई, और फिर बाज रवायात में ये भी आता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। और यहाँ पर तारीख से पता चलता है कि नहीं, भाई का बेटा था, यानी भतीजे थे। और फिर अहले तारीख के नजदीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंझले भाई थे, दरमियान में थे, और हारान अपने बाप की जिंदगी में उसी जमीन में फौत हुए जिसमें उनकी पैदाइश हो गई थी। तो ये हारान का जो बेटा थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, बस यही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अजीमुल मर्तबत पैगंबर थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर आए उन सब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुतबा सबसे बड़ा था। उसकी वजह यह है कि चंद पैगंबरों के मासुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही सारे पैगंबर आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल से हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी उन्हीं से था। यही वजह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी और नसारा भी मानते हैं, और मुसलमान तो बहुत ही ज्यादा मानते हैं। हर नमाज में भी आपका जिक्र आता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद फरमाते हैं कि इस किताब में इब्राहीम का जिक्र कीजिए, वो रास्ती वाले पैगंबर थे, यानी सच्चे और राह रास्त पर थे। एक और जगह पर अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि वो बेशक अल्लाह के फरमाबरदार थे और बिल्कुल एक ही तरफ के हो रहे, और वो शिर्क करने वालों में से ना थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने उनको चुन लिया था, सीधे रास्ते पर डाल दिया था। हमने उनको दुनिया में भी खूबियां दी थी और आखिरत में भी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहूदी और नसारा तो उनसे बहुत ज्यादा कुर्बत का दावा करते हैं, जबकि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि ना वो यहूदी थे ना वो नसरानी थे, बल्कि वो सीधे रास्ते पर थे और तकवा वाले थे। तो आज आपको पता चल गया कि यहूद और नसारा जो हैं वो क्यों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। उसकी वजह ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी, उनका भी शजरा नसब जाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है, जिसकी वजह से यहूद और नसारा भी इनको मानते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सफर करते गुजरी। आज शाम में है तो कल मिस्र में, फिर कुछ अरसा के बाद उर्दन या फलस्तीन में, कभी हिजाज का दौरा कर रहे हैं, इसी तरह मक्का की बेयाबान वादी में, और फिर वापस बैतुल मुकद्दस। तो ये तमाम जगह जो थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते और जाते रहे। आपके जमाने में लोग बहुत ज्यादा गुमराह थे, हर किस्म की इखलाकी बुराइयां उनमें पाई जाती थी, आपस में उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं था, नहायत संग दिल लोग थे। यानी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले का जो माशरा आपको बताया जा रहा है, एक अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद पर थे, पूरा माशरा जो है वो इनके खिलाफ था। संग दिल लोग थे, भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, जिंदा इंसानों को आग में फेंक देते थे, कत्लो गारत गरी करते थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस कौम के मुकाबले में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमा दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहीमुल मिजाज और हलीमुत तबा थे। रहीमुल मिजाज का मतलब ये है कि आप बहुत रहम वाले थे। अभी आपने देख लिया कि इस कौम के अंदर रहम बिल्कुल नहीं था, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत रहम वाले थे, रहम दिल थे, लेकिन आपकी कौम रहम दिल नहीं थी, बल्कि संग दिल और जालिम थी। हलीमुत तबा का मतलब ये है कि आप बुर्दबार और सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले और हौसला रखने वाले थे, लेकिन आपकी कौम इन सिफात से भी बिल्कुल महरूम थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्दा नमूना है, इसीलिए तुम्हारे अंदर भी यही सिफात होनी चाहिए, बर्दाश्त करने वाले, सब्र करने वाले और हौसला रखने वाले। एक और जगह पर अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि सबसे बेहतर दीन दीन इब्राहीम है। दीन इब्राहीम में तकवा और सच्चाई की दुआ की गई है। कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जमाना एक ही था। इंशाल्लाह जब हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए थे, बाकी
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जगह तबलीग कर रहे थे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम दूसरी जगह पर, और वक्त और जो जमाना था वो यही था, और आगे पीछे ही जो है इनकी वफात भी हुई थी। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी बुत परस्ती से बहुत ज्यादा नफरत थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप खुद बुत परस्त थे, बुत बनाकर बाजार में भेजते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, तुम बुतों को पूछते हो, तुम तो गुमराही में पड़ चुके हो। बाप ने बेटे की बात सुनकर कहा, ए इब्राहिम, क्या तू हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आया है या हमसे मजाक कर रहा है? क्योंकि आज से पहले जब तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नहीं हुए थे, तब तक इनके वालिद को सिर्फ इज्जत ही इज्जत मिली थी। कोई भी इनके बाप के ऊपर जो था वो उंगली उठाने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था, इतने आला मनसब के वालिद थे। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको क्या कहा कि आप तो गुमराही में पड़ चुके हैं। तो जब इनकी बात हुई अपने बेटे से, तो कहा कि तू हमारे पास अगर कोई सच्ची बात लाया तो बता, या फिर तू हमारे साथ मजाक कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने जमीन और आसमान बनाया। फिर फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, तुम ऐसी चीज की क्यों इबादत करते हो जो ना कुछ सुने, ना कुछ देखे, ना तुम्हारे कुछ काम आ सके? ए मेरे अब्बा जान, मेरे पास ऐसा इल्म पहुंचा है जो तुम्हारे पास नहीं आया। तुम मेरे कहने पर चलो तो तुमको मैं सीधा रास्ता बतलाऊंगा। ए मेरे अब्बा जान, तुम शैतान की प्रस्तिश ना करो, शैतान रहमान का नाफरमानी करने वाला है। ए मेरे अब्बा जान, मैं अंदेशा करता हूं कि तुम पर रहमान की तरफ से कोई अजाब ना आ पड़े, फिर तुम शैतान के साथी हो जाओ। बाप ने जवाब दिया, क्या तुम मेरे माबूदों से फिरे हुए हो? बाप ने फिर कहा, इब्राहिम, अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें पत्थरों से संगसार कर दूंगा। देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर सबसे बड़ा जो था तकलीफ दे मरहला, अपने बाप ने कहा था कि मैं तुम्हें पत्थरों से संगसार कर दूंगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे किनारा कर जाओ। यानी जो ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ दावत दी थी, तो सबसे पहले बाप ही ने ही खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को संसार करने के लिए भी कहा था, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने पास से निकल जाने के लिए भी कह दिया था। तो ये सबसे पहला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो सबसे अगर आप कहें इमोशनली जो चोट लगी थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ये सबसे पहले लगी थी। और बास तारीख की किताबों में आता है कि उस वक्त जो था वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी जिस वक्त इन्होंने ये मुकालमा अपने बाप के साथ किया था। फिर इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप की जुबानी जब ये अल्फाज सुने तो कहा कि मैं सलाम करता हूँ और मैं अपने रब से तुम्हारे लिए मगफरत की दरखास्त भी करूंगा। बेशक अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान है। अब मैं जा रहा हूँ, अपने रब की इबादत करूंगा, अपने रब की इबादत से महरूम ना रहूंगा। और ये कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। और कहाँ गए थे? वहीं करीब ही थे, क्योंकि यहीं पर फिर सारा वाकया, यहाँ से तो पता चलता है कि रुखसत हो गए, लेकिन ये नहीं पता चलता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर में कहीं अलहदा हुए या घर के करीब कहीं रहने लगे, क्योंकि फिर यहीं पर ही सारा वाकया जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का और बाकी जितना भी वाकया है वो फिर इसी जगह पर ही होगा। तो इस वजह से उससे ये मालूम होता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस जगह से रुखसत नहीं हुए थे, सिर्फ अपने वालिद के घर से जो था वो रुखसत हो गए थे। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था। और ये आप पढ़ेंगे सूरत शोरा में आयात हैं, 5 दुआएं की थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जिसमें से 4 कबूल हो गई थी। और जो अपने बाप के लिए दुआ की गई थी कि या अल्लाह मेरे वालिद को बख्श देना, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये दुआ जो थी वो कबूल नहीं की थी, बाकी उनकी दुआएं जो हैं वो कबूल हो गई थी। सूरत शोरा में इसका जो है सारा हमें किस्सा मिलता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्यों दुआ की थी अपने वालिद की बख्शिश के लिए? क्योंकि वो अपने वालिद से वादा कर चुके थे कि मैं आपके लिए बख्शिश जरूर करूंगा।
तो बख्शिश मांगना एक वादे के सबब था जो वो कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि उनका बाप जो है वो खुदा का दुश्मन है, तो वो अपने बाप से बेजार हो गए। और इसमें कुछ शक नहीं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के रोज जब अपने बाप से मिलेंगे, तो एक चीज जहन में रखें कि हम सब वहां पर अपने तमाम रिश्तेदारों से मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि क़यामत वाले दिन भी अल्लाह सुब्हाना व तआला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुसवाई से बचाएंगे। कैसी रुसवाई से? कि उनके वाल अंजाम होगा उस रुसवाई से बचाएंगे कि जिस वक्त ये अपने बाप से मिलेंगे तो आजर का चेहरा स्याह और गर्दो गुबार से अटा हुआ होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि क्या मैंने तुझे कहा ना था कि मेरी नाफरमानी ना कर? तो बाप जवाब देगा कि आज मैं तेरी नाफरमानी नहीं करता। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि बेशक तूने मुझसे वादा किया हुआ है कि उस दिन तू मुझे रुसवा नहीं करेगा। यानी अगर इतनी दुनिया यहाँ पर खड़ी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी शख्स जो इस दुनिया में आया, वो सब वहां हशर के मैदान में होंगे, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप को उनके सामने आग में डाला जाता, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उनकी रुसवाई होती, नाउज बिल्ला। तो आप ये देखिए, ये पहले से ही बता दिया गया, अभी क़यामत का दिन नहीं आया, लेकिन ये पहले से ही बता दिया कि उसके साथ क्या होगा। तो कहा कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि उस दिन तू मुझे रुसवा नहीं करेगा, तो तेरी रहमत से दूर मेरे बाप से बढ़कर और कौन सी रुसवाई ज्यादा हो सकती है। अब आप खुद सोचिए कि नाउज बिल्ला अगर हम अपने बच्चों से, अल्लाह ना करे, हम अपने बच्चों से आजमाए जाएं या अपने वालिदैन से आजमाए जाएं, और हम जितने मर्जी नेकोकार हों, लेकिन आप देखिए कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला कभी भी ऐसा ना करे हम आजमाए जाएं, तो कितनी ज्यादा हम अपनी जिल्लत महसूस करेंगे। तो उस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला से कहेंगे कि मेरे बाप को जो है वो बख्श दिया जाए। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाएंगे कि बेशक मैंने जन्नत काफिरों पर हराम कर दी है। सूरत अराफ में और बाकी सूरतों में भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत क्लियरली बता दिया कि जन्नत काफिरों पर हराम है। और फिर कहा जाएगा, ए इब्राहिम अपने पांव के नीचे की तरफ देख। वो देखेंगे एक मुर्दार गंदगी में लुथड़ा पड़ा है। और बाज जगहों पर आता है, सुअर के बारे में आता है कि सुअर बना दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या अल्लाह हमें इन तमाम रुसवाइयों से बचा देना। तो फिर क्या होगा कि वो देखेंगे कि एक मुर्दार गंदगी में लुथड़ा हुआ या सुअर जो है वो उनके पाँव के पास होगा, और फिर उसको, यानी उनका जो बाप है उसको सुअर की शक्ल देकर पाँव से पकड़कर उसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। और अब आप यहाँ पर देखिए कि इनका जो बाप है उसको असली शक्ल में नहीं फेंका जाएगा, इसलिए ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी दुनिया के सामने जो है वो अपनी सुबकी महसूस ना करें, या वो ये ना समझे कि मुझे रुसवाई दी गई। क्योंकि सूरह शोरा में अल्लाह सुब्हाना व तआला से इन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे रुसवा ना करना जिस दिन सब लोग उठाए जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये दुआ मान ली थी, और इसी वजह से, उसी दुआ की वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन वास्ता देंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला इनके बाप की शक्ल ही तब्दील कर देंगे और इनका बाप बदली हुई शक्ल के साथ जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम सब दुआ करें। आजकल आप देखिए कि हमारे मीडिया ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि मुख्तलिफ ड्रामों में और मुख्तलिफ जो है वो फिल्मों में और इन सब जगहों पर जो घरों की सेटिंग्स दिखाई जाती हैं, हर दूसरे तीसरे घर में आपको कोई ना कोई जो है वो बुत पड़ा हुआ दिखाया जाएगा। फिर इसी तरह होम इकोनॉमिक्स कॉलेज और इसी तरह के जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनमें वो जो मट्टी के बुत और फिर उनके चेहरे बनाना और ये सारी चीजें, और फिर बनाकर उनको पेंट करके फिर लोग जो हैं
वो अपने घरों के अंदर जो है उसको रखते हैं। आप देखिए कि बहुत सारी बच्चियां, हो सकता है आपके जानने वालों में भी बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे बच्चे हमारे, हम पर मंथ जो है यूनिवर्सिटी के लाखों रुपया उनका दे देकर उनको जो है ये सारा कुछ पढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल में आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, जरूरी नहीं कि मैं उन कोर्सेज के नाम लूं और फिर आप कहें कि जी हमारा बच्चा भी कर रहा है और हमारा बच्चा भी कर रहा है, तो आपने जो था वो डिटेल नाम क्यों लिया। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरीके से फिर उन बच्चों को उस मिट्टी के साथ जो है वो मुख्तलिफ तरह की मूर्तियां और शक्लें बनाना जो है वो सिखाई जाती हैं। फिर वो मूर्तियां वगैरह जो होती हैं फिर उनके ऊपर उनको प्राइजेस मिलते हैं और फिर हम बड़े फख्र से लोगों को बता रहे होते हैं कि देखो मेरे बच्चे ने फलां डिग्री हासिल की, हालांकि हमारा बच्चा बीच में वो सारे काम जो है वो कर कर आ रहा होता है। और फिर आप देखिए कि अभी जो मैंने मीडिया का आपको कहा कि मीडिया भी मुख्तलिफ तरह के बुत घरों में रखवा कर जो है वो अब हमारे दिमागों से इस बात को बिल्कुल जो है वो खत्म किया जा रहा है। यानी जितनी हमें शदीद नफरत होनी चाहिए थी बुतों से, और अगर कोई इस तरह की कोई छोटी मोटी शक्ल भी अगर हमारे घर पर लगी होती तो हमें उससे भी शदीद नफरत होनी चाहिए थी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के नाम पर मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें, उनके अंदर शक्लें और ऐसी ऐसी शक्लें कि रात में अगर आप देख लें तो आप डर ही जाएं, लेकिन लाखों रुपीस में वो जो है वो लाई जाती हैं, वो पेंटिंग्स और हमारे ड्राइंग रूम्स की जीनत बनती हैं और वो सब कुछ हो रहा है। तो आजकल भी आप देखें कि ये जो बुत का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमारे जहनों से आराम आराम से महव किया जा रहा है और हमारे घरों के अंदर भी ये बुत वगैरह जो हैं अब ये परवरिश पाना शुरू हो गए हैं, जो कि मुख्तलिफ मीडिया और बाकी तमाम चीजों के जरिए हमारे सामने आ रहे हैं। और फिर आप देखिए कि अगर किसी को मना किया जाए कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो स्पेशली जो माएँ हैं वो उठकर बड़े आराम से आपको कह देती हैं कि आपको क्या मालूम, ये तो आजकल का ट्रेंड है। माएँ यही कहती है ना, आपको क्या पता। यानी लोग ये समझते हैं कि जो कुरान और हदीस पढ़ने वाले लोग हैं ना, उन गरीब बेचारों को दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता। हालांकि उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि उन्हीं को ही सबसे ज्यादा दुनिया और आखिरत सबके बारे में पता होता है। वो अपनी आंखें और कान खुली रखते हैं। जो कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले लोग होते हैं उनको कहा गया आंखें और कान खुली रखो, तो वो अपने इर्द गिर्द अपने माहौल हर एक चीज के बारे में वो जानते हैं। तो जब मना भी किया जाए आजकल के दौर में, जैसे अगर आप किसी से अपने घर की सेटिंग वगैरह करवाएं तो वो भी आपके लिए बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी लाएगा सेटिंग के लिए, और साथ में ये बुत और इस टाइप की डिफरेंट चीजें। और फिर छोटी मोटी अगर शक्ल बनी हो और आप मना करें कि भाई इसको रास्ते में ना रखो और इधर ना रखो, इसके ऊपर कोई शक्ल बनी हुई मुझे फील हो रही है, तो फौरन क्या कह दिया जाता है। एक तो आप लोग जो दीन पढ़ने वाले हैं या जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो इस तरह से पता नहीं क्यों देखते हैं, और फिर आप लोगों को तो हर बात में जो है वो कीड़े निकालने का शौक पैदा हो गया है। दोबारा से इस तरफ देख लें, मैंने ये स्क्रीन से ये हदीस नहीं हटाई है, इसी वजह से नहीं हटाई क्योंकि मैं चाहती थी कि यहाँ पर जो है हम आज खुलकर बात करें आपस में, और अपने घर का हम एक जिसे कहते हैं ना वो कीन ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, उसको बड़ी ही बारीकी से देखना अपने घर में। तो इर्द गिर्द जरा अपने घर में देखिए, अगर कोई ऐसी शक्ल, कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी चीज जो आपने, हो सकता है कुछ चीजें तो ऐसी होंगी कि जो आपने बड़ी ही प्यार और मोहब्बत से रखी होंगी, और कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बुत टाइप सी चीज, कोई ऐसी किताब जिसके ऊपर शक्लें वगैरह बनी हो, तो कोशिश ये करें कि उनको अपनी नजरों से दूर करें। और फिर ये जो बुत का कॉन्सेप्ट आजकल आता चला जा रहा है, अगर इस टाइप की कोई भी चीज आपके घर पर है तो उसको तो मैं कहती हूँ थोड़ी लेकर बिल्कुल पीस पीस कर दें। उसकी वजह क्या है कि इसका गुनाह देखिए किस कदर शदीद तरीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे लोगों को काफिर कह रहे हैं। आप कहेंगे कि हम कोई पूजा तो नहीं करते, उसका उनके बाप तो जो थे वो पुजारी थे, हम कोई पूजा तो नहीं करते, पूजा नहीं करते तो रखा क्यों हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए, हमने अभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, जो सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला को तो मानने से, उन्होंने एक अकेला मानने से इनकार किया था ना। कैसे बुत परस्ती जो थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में आ गई थी।
सबसे पहले तस्वीरें ही आई थी ना, तस्वीरें आई थी, फिर कहा गया कि चलो तस्वीरों के बाद अब मैं तुम्हें इनका बुत बना देता हूँ, शैतान ने कहा, और फिर बुत बना दिया गया, और फिर वो बुत रख दिए गए। देखे, उसी वक्त अगर उनको मना कर दिया जाता कि तोड़ दो इनको, तो वो बुत तो ना होते ना फिर उनके पास। तस्वीरों से काम शुरू हुआ, फिर बुत आ गए, और जब बुत बुत भी आ गए, उसके बाद जो एक नस्ल जो थी वो खत्म हो गई। तो आप तो कोई ना कोई तस्वीर लगाकर या कोई ना कोई बुत अपने घर पर रख कर, हम तो मर जाएंगे, हमने जिंदा तो नहीं रहना कि कई सालों की जो है वो हम शायद कोई गारंटी लेकर आए हैं, हमें तो कल का पता नहीं है। तो आप देखिए कि जब हम मर जाएंगे, और हमारे बाद में हमारी औलाद को क्या मालूम कि जो हमारे वालिदैन थे या मेरी वालदा थी, क्योंकि अभी तो हम सब खवातीन यहाँ है ना, तो हमारे बच्चों को क्या मालूम कि ये जो मेरी वालदा थी, इन्होंने घर के अंदर ये जो एक तस्वीर लगाई हुई थी या जो ये बुत की शक्ल का ये पड़ा हुआ था, ये क्यों था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो शैतान है, फिर वो हमारी नई नस्ल को आगे से आगे ले जाएगा, और हम अपना गुनाह जारिया अपने पीछे छोड़ कर चले जाएंगे। और फिर एक टाइम आएगा कि जब तमाम के तमाम बच्चों के दिमागों से ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को वो सब कुछ दे ही नहीं रहे। आज सुबह ही मैं मोबाइल फोन के बारे में पढ़ रही थी कि जो डॉक्टर साहब थे, अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला वो तहकीक आप सब तक पहुंचाऊंगी। आप में से भी बहुत सारे घरों में छोटे बच्चे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे अपनी तहकीक में कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा मौजूद है, यानी 7 साल से छोटा, 7 साल से छोटा बच्चा मौजूद है, तो उसके हाथ के ऊपर जलता हुआ अंगारा रख दे। रख सकते हैं? जरा यहाँ माएँ भी बहुत सारी होंगी, इंशाल्लाह फिर अगर हुआ तो मैं आपसे बात करूंगी इस सिलसिले में। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके हाथ में जलता हुआ अंगारा रख दे। जलता हुआ अंगारा उसको इतनी तकलीफ नहीं देगा जितनी शदीद तकलीफ आप लोग एक मोबाइल फोन उसके हाथ पर रख कर देंगे। अच्छा, अब उसका सिर्फ मैं आपको बड़ा बड़ा नुकसान बताती हूँ। डॉक्टर साहब ने तो वो रेडिएशन का भी नाम लिया, सब कुछ, वो तहकीक में आपको भिजवा दूंगी, उसके बारे में आपको बताती हूँ कि वो क्या होगा। वजह क्या है कि इस मोबाइल फोन की वजह से जो उन्होंने बताया, उसकी रेडिएशंस और जो जो उसकी फ्रीक्वेंसीज और सारा कुछ वो जो बता रहे थे, वो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर डिस्कस करेंगे। तो वो बता रहे थे कि उसकी वजह से अब हम तो बड़े हो गए, अब जो हमारी नस्ल आ गई, तो इससे जो अगली नस्ल ने आना है, उनमें से 90% बच्चे, यही मोबाइल फोन वाले बच्चे जो होंगे, 90% बच्चे सेक्सुअल, इनको मुख्तलिफ तरह की बीमारियां लग चुकी होंगी जब ये 12 से 13 साल तक होंगे। ये फैमिली बनाने वाले नहीं होंगे, सिर्फ इसी मोबाइल फोन की वजह से। आगे ये अपनी फैमिली नहीं दे सकेंगे, ये अपने घर वालों को संभालने वालों में से नहीं होंगे। कुछ अरसा तक इनकी खानदान बनेगा और उसके बाद जो है वो खानदान टूट जाएगा। सेहत के लिहाज से अगर इनको देखा जाएगा, तो अगर उम्र के लिहाज से हम सब कहते हैं कि उम्रें जो हैं वो 40 या 50 साल या 60 साल या 70 साल तक भी कोई चला जाता है, तो ये जो अगली नस्ल है, ये इसी मोबाइल फोन के बचपन में इस्तेमाल की वजह से 30 से 35 साल से ऊपर नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि इनको तौहीद और ईमान और इस तरह की जो बातें हैं वो इनकी समझ में नहीं आएगी। समझदानियां बड़ी छोटी हो जाएंगी, छोटी छोटी सी समझदानियां हो जाएंगी। तौहीद वगैरह जो है वो इनको समझ में नहीं आएगी। मुझे नहीं पता था, मैंने आपसे ये बात नहीं करनी थी, लेकिन क्यों ये बुतों के इस पर जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे दिमाग में ये सारी बात जो है वो डाली। और इंशाल्लाह हुआ तो मैं आपको फौरन इसकी रिसर्च जो है वो भिजवाऊंगी, डॉक्टर साहब की पूरी वीडियो जो है वो मैं आपको भिजवाऊंगी, तो आप लोग खुद उसमें देख लीजिए। तो अगली नस्ल जो है वो इस तरह से आने वाली है। तो फिर आप में हम सब कैसे अपने घरों में ये तस्वीरें और ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है जी, ये 1 लाख की है और ये 2 लाख की और ये 4 लाख की और ये 6 लाख की, और जी हम समझते हैं कि हम बड़े मॉडर्न हो गए, और जो मना करे तो उससे बड़ा तो बेवकूफ और पेंडू कोई और है नहीं। और इसी तरह शक्लें बनी हुई कोई भी आपके घर में चीज है, चाहे वो लाख की है और चाहे वो करोड़ की है, लेकिन आपके लिए
आपकी कब्र के लिए वो बड़ी नुकसानदेह है। तो मैं तो आज इतना खौफनाक मुझे लगी, ये आज की तहकीक इतनी ज़्यादा खौफनाक लगी कि मैं ये सोच रही थी कि अगर आइंदा ऐसी नस्लें आने वाली हैं तो सोचिए कि हम सब लोग जो सोचते हैं कि मेरे बाद जो है वो मेरी औलादें या उनकी औलादें जो हैं कोई एक अच्छा काम करेंगी और जो है हम कब्र में अपने फल फ्रूट खाएंगे। तो इन तमाम चीजों से हमें उस चीज का भी समझ में आ गई कि ऐसा ऐसे भी किसी जोम में आपको और मुझे हम सबको नहीं रहना चाहिए। तो फिर देखें, आपकी मेरी हम सब की, हम अपनी उम्रों की तरफ देखें कि हमारे पास कितना थोड़ा सा वक्त रह गया। जो कुछ भी करना है खुद ही करके जाना है। और हो सकता है ये जो इस टाइप के जो बच्चे जब बड़े हों और सब कुछ हो, तो आप देखिए कि हम जो अपने सदका जारिया और सारा हम समझे कि हमारे सदका जारिया हैं और ये है वो है, तो वो सब कुछ भी ये लोग तबाह बर्बाद कर देने वालों में से हो। तो इसलिए आज आप में हम सब वादा करें अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला से कि हम खुद से कुछ ऐसा बेहतरीन करके जाएं इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मरने के बाद हमें किसी बाहर के शख्स की दुआ और किसी चीज का मोहताज ही ना करें। हम सब कुछ इतना बेहतरीन कर लें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी कब्रों को जो है वो जन्नत का बाग बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, हम लोग पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के दिन भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है वो रुस्वा नहीं करेंगे, बल्कि जो उनका बाप है उसको मुर्दार या बिज्जू जो है वो बनाकर उसके पैरों से पकड़कर उसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। हम आगे पढ़ते हैं कि एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा कि हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। ए कौम, तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुत को पूज रहे हो। ना तो इनमें ये ताकत है कि ये नुकसान पहुंचाए और ना ही ये फायदा पहुंचा सकते हैं। तो कौम ने कहा कि हम अपने बाप दादा के रास्ते पर चल रहे हैं, हमने उनको भी इसी तरह करते हुए देखा। तो आप देखिए कि आज भी अगर आप किसी को मना करते हैं कि देखो ये काम गलत है या ये बिद्दत है और इस तरह का काम ना करें, तो फौरन लोग क्या कहते हैं कि हमारे बाप दादा परदादा से ये होता चला आ रहा है और हमें इसकी वसीयत की गई है और हमें कहा गया है कि हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल कोई एक न्याज होती है, कोई एक जो है वो कुछ भी जो है वो हम देते हैं, कोई सालाना कोई महाना जो हम दे रहे होते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या कह रहे होते हैं कि भाई हमारे बाप दादा परदादा हमें नसीहत करके गए हैं, तो क्या वो गलती पर थे? अब अगर कह दें कि वो गलती पर थे तो लोग जो है उनको गुस्सा चढ़ जाता है कि ये कैसी बातें करते हैं। और साथ में लोग जो हैं हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं। यही बात इनकी कौम ने भी की थी और ये कुरान पाक में भी जो है मुख्तलिफ सूरतों में इसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की जो बातचीत है वो हमारे सामने आती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, वही है जिसने मुझको और तुमको पैदा किया, वही हमारी रहनुमाई करता है, वही मुझको खिलाता है पिलाता है, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो शिफा भी देता है। आप पर एक ऐसा दौर भी गुजरा जो सरासर आजमाइशी था, आपने खुद भी अपनी अक्लो फहम से काम लिया और आपने गौर करना शुरू किया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक चीज जहन में रखिए कि पूरी बस्ती में एक शख्स भी मुसलमान नहीं है। हम लोग बड़ा रोते हैं ना, ओहो लोग हमारी बात नहीं सुनते और जी हम जो है कैसे किसी को बताएं और हम शर्मिंदा हो रहे होते हैं, मैं कैसे बोलूं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से दिलों को बड़ी तसल्ली मिलती है कि हम तो फिर भी ऐसे लोगों को बता रहे होते हैं कि जो कम अज कम अल्लाह सुब्हाना व तआला से डर जाते हैं। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम आता है या कुरान पाक की कोई बात आती है तो बेशक बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो कुछ डर तो जाते हैं। हम ऐसे लोगों को भी नहीं बता रहे होते। तो यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किनको समझा रहे हैं कि पूरी कौम में एक शख्स भी जो है वो मुसलमान नहीं है, एक शख्स भी अल्लाह सुब्हाना व तआला को एक अकेला मानने वाला नहीं है। तो वहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत देते जा रहे हैं। तो अब दावत कैसे दे रहे हैं कि खुद अपनी अक्लो फहम से काम लिया। किसी ने नहीं बताया था कि इसको अल्लाह कहते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है और ये कलमा पढ़ना है, किसी ने कुछ नहीं बताया था।
सब अपनी अक्ल से, अपनी फहम से और इर्द गिर्द की चीजों से जो है वो समझ में उनके आ रहा था। तो आपने गौर करना शुरू किया कि कौम बुतों के अलावा चांद, सूरज और सितारों को क्यों माबूद समझती है, जबकि ये सब जवाल पजीर है। और फिर एक जगह मैं पढ़ रही थी कि इनकी जो कौम थी वो क्योंकि सितारों को पूजती थी, तो इसलिए वो रात को इबादत किया करती थी, क्योंकि आप देखिए कि जो सितारे होते हैं वो सारे रात में होते हैं। तो इनकी जो कौम थी फिर वो रात में इबादत करती थी, और जब सुबह की रोशनी जूं ही पो फूटती थी, रोशनी आती थी और सारे सितारे गायब। तो ये सब चीजें जो थी वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको बड़ी अच्छे तरीके से महसूस भी कर रहे थे, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे सबक भी ले रहे थे। ये तमाम चीजें अपनी अक्ल के ऊपर जो था वो लेकर आ रहे थे। एक मर्तबा आपने रात को सितारे देखे तो ख्याल किया कि ये रब हो सकते हैं, फिर कहा कि ये मेरा रब है। जब वो गायब हो गए तो फरमाया कि गरूब हो जाने वालों से तो मैं मोहब्बत नहीं रखता। जब चांद को चमकता पाया तो फरमाया ये मेरा रब है। जब वो भी ओझल हो गया तो फरमाया अगर मुझको मेरा रब हदायत ना करता तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाता। ये भी कुरान पाक के अल्फाज हैं। और जब सूरज को देखा तो फरमाया यही मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। जब वो भी गरूब हो गया फरमाया कि ए कौम, बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। मैं अपना रुख उस जात की तरफ करता हूं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं सीधे रास्ते पर हूं और शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। तो ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है जो आपके सामने आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस आयत का क्या मतलब है कि आपने किसी के बताए हुए तरीके या बाप दादा के तरीके जो वो करते रहे आपने उन पर अमल नहीं किया, बल्कि आपने अपनी अक्ल सलीम से कान लेते हुए अपनी अक्ल सलीम को जो था वो इस्तेमाल करते हुए गौर फिक्र शुरू किया, अंधी तकलीद नहीं की। अल्लाह की रहमत भी आपके साथ फिर शामिल हाल रही। तो आपको और मुझे, हम सबको क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे वालिदैन हमें कोई ऐसा गलत काम करने की तरफ बुला भी रहे होते हैं तो सबसे पहले परखिए। और आजकल तो कोई, मैं कहती हूँ कोई मसला ही कोई नहीं है, गूगल तो हम सब का बाप बना हुआ है। किस तरीके से कि जो कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, आप जो है वहां सर्च करें, ऑथेंटिक आपको चीजें भी मिलेंगी और ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो फेक होंगी। तो ऑथेंटिक चीजें ढूंढे, और अगर कोई ऐसी चीज जैसे कोई बिद्दत है, कोई ऐसी बात है, तो उसके ऊपर ऑथेंटिक रिसर्च करें, और उसके बाद किसी को कुछ ना कहें। कोई आपको बता रहा है ना ये काम ठीक है, ये काम गलत है, ये वाली किताब पढ़ा करो, ये क्यों पढ़ती हो, तो फौरन जो है वो रिसर्च वर्क में ले लिया करें, सर्च किया करें, और ऑथेंटिक चीजों के जरिए से अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए या तो चीज को हासिल कर ले या फिर छोड़ दें। अब क्या हुआ कि शहर बाबल की एक रवायत थी। रवायत के मुताबिक वहां हर साल मेला लगा करता था, और मेले में लोग तिजारती सामान ले जाकर फरोख्त करते थे। वहां बुत भी फरोख्त होते थे उसी मेले में, और जरूरत की तमाम चीजें भी मिल जाती थी। इसीलिए लोग जो थे वो मेले में जाते थे। वहां तफरीह का सामान भी मुहैया था, लोग रंग रलियां भी मनाते, सैर व तफरीह भी करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हर तरफ के लोग मेले में जमा हुए, खरीदो फरोख्त हो रही थी कि अचानक किसी के चूल्हे से चिंगारी उड़ी, आग लग गई, हर शय जलकर भस्म हो गई, बुत भी जलकर राख हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो कहा ये बुत अपने आप को आग से नहीं बचा सकते तो ये किस तरह माबूद कहलाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो थी, इन सबको भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परखा था अपनी अकल पर। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम जो त्योहार मनाती थी तो वो क्या करते थे, एक और जगह पर मैं पढ़ी थी कि वो सब के सब सुबह के वक्त खूब जबरदस्त खाना बनाते थे। ऐसा खाना कि जो शाही खाने के तौर पर वो सुबह सवेरे सारा कुछ बनाते थे, और फिर जो उनका बुत खाना था उस बुत खाने में वो सारे का सारा खाना जो था वो बुतों के आगे रख देते थे।